Good morning, children. Today we are going to start question number 17 of exercise 16C. The cost of painting the total outside surface of a closed cylinder oil tank at 60 paisa per square decimeter is rupees 237.60. If the height of the tank is 6 times the radius of the base of the tank, find the volume correct to the decimal places. तो बच्चों इसमें हमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, पूरा आपको दिया हुआ है कि कॉस्ट है उसको पेंट कराने की, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल आउटसाइड सरफेस, यानी कि पूरा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपका जो है उसमें पेंट हुआ है और वो 60 पैसे पर स्क्वायर डेसीमीटर के रेट से है। तो आप पहले तो 60 पैसे को कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में। 60 पैसे इज इक्वल टू 0.60 rupees 0.60. Clear? Now find the total surface area. Total surface area is equal to total cost divided by cost per decimeter square. तो टोटल कॉस्ट कितनी है बच्चों? 237.60 डिवाइडेड बाय 0.60. Decimal remove by decimal because 2 after the decimal 2 digits, after the decimal 2 digits, 0 cut by 0. Now 6 3s are 18, 5 and 7 57, 6 9s are 54, 6 6 are 36. कितना आ गया? 396 डेसीमीटर स्क्वायर। क्योंकि इसका रेट हमें डेसीमीटर के हिसाब से दिया हुआ था, इसलिए हमारा जो ये आया है किस में आया है? डेसीमीटर स्क्वायर में। नाउ फाइंड द आर एंड एच। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको आर भी चाहिए और एच भी चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या लेंगे? लेट्स रेडियस टू बी एक्स, radius to be x. Therefore, height of cylindrical oil tank is equal to, if the height of the tank is 6 times the radius, it means height is equal to 6 multiplied by x is equal to 6x. तो हमें आपको रेडियस और हाइट पहले फाइंड करनी है। तो वी राइट हियर टोटल सरफेस एरिया ऑफ cylindrical tank is equal to 2 pi r plus h. It is the formula of total surface area of cylindrical tank. So now 2 into pi is equal to 22 upon 7, r is equal to x, again r is equal to x plus 6x. Solve it. 2 into 22 x upon 7 into 7x plus 6x is equal to 7x. 7 cut by 7, 22 2s are 44, x into x is equal to x square, and total surface area is 396 here and 396 here. तो कितना आ गया बच्चों? 44x square is equal to 396. X square is equal to 396 divided by 44. 44 9s are 396. X square is equal to, we can write it 3 into 3. X is equal to 3 into 3 square root of 9. X is equal to कितना आ गया? 3. तो रेडियस कितना आ गया बच्चों? रेडियस इज इक्वल टू 3 एंड इट हाइट इज इक्वल टू 6x. 3 into 18 is 3 into 6 is equal to 18. डेसीमीटर में ही चल रहा है ये सभी, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड द
volume of the cylindrical tank. Volume of cylindrical tank is equal to pi r square h. pi 22/7, r कितना आया था बच्चों, 3 × 3 इंटू h is equal to 18. Now 22 3s are 66, 18 3s are 54 divided by 7. Multiply these, we find 3564 divided by 7. If we divide by 7, we get 509.142857 decimeter square, डेसीमीटर क्यूब. वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब में. अब ये हम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लेंगे तो थर्ड प्लेस देखेंगे. थर्ड प्लेस इज स्मॉलर देन 5, सो वी गेट 509.14 decimeter cube. Clear? Now question number 18. A metallic pipe has internal and external diameters as 8 centimeter and 12 centimeter. Find the volume of the metal used if the pipe is 2.8 meter long. Also find the weight of the pipe if every 1 centimeter cube weigh 1.2 ग्राम. बच्चों अगर हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिए हुए होते हैं तो सबसे पहले तो हम एक्सटर्नल और इसके इंटरनल डायमीटर्स को रेडियस में कन्वर्ट करते हैं. तो फर्स्ट वी टेक इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ इंटरनल पार्ट इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. इसको आप ले सकते हैं R1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. हमने इसको R1 ले लिया. नाउ एक्सटर्नल डायमीटर of pipe is equal to 12 centimeter. Now we take external radius of pipe is equal to 12/2 is equal to 6 centimeter. You know radius is equal to diameter upon 2. ठीक है. height or length of pipe is equal to 2.8 meter. अब ये 2.8 मीटर दिया हुआ है बच्चों. जब आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इसका हमें वेट भी फाइंड करना है. वेट ऑफ द पाइप इफ एवरी 1 सेंटीमीटर क्यूब वे 1.2 ग्राम. यहाँ पर जो हमें वेट दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बेस पर दिया हुआ है. तो इसको यहाँ पर हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर में. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 2.8 मीटर इज इक्वल टू 2.8 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 280.0 सेंटीमीटर. क्लियर? Now write the formula. If external or internal diameters are given, then volume if its material is equal to volume of its material is equal to pi r2 square h minus pi r1 square h. Because in this question 2r is given, तो पहले किसका वॉल्यूम लेंगे, r2 स्क्वायर, और फिर किसका लेंगे, r1 स्क्वायर. नाउ 22/7 इंटू
R2 कितना था बच्चों, 6 स्क्वायर इंटू एच 2.8 माइनस 22/7 R1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू 2.8 नहीं 280, हमने 280 में इसको कन्वर्ट कर लिया था सेंटीमीटर्स में। नाउ कैलकुलेटेड 7 4 ज़ा 28, 0 का 0 तो कितना आएगा 20 इंटू 2 इंटू 40, सॉरी 22 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 40, 22 6 स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू 40 माइनस 7 4 ज़ा 28, तो इसमें कितना आएगा बच्चों 22 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 40। नाउ कैलकुलेट इट, 22 6 ज़ा 132, 6 4 ज़ा 24 240 माइनस सेम 22 4 ज़ा 88, 44 ज़ा 160. Now multiply this. If we multiply, we get 31680 minus 14080. 16 8 ज़ा 128, 12 कैरी करेंगे, 16 8 ज़ा 128, 128 एंड 12 140, ठीक है। अब माइनस करिए इसको, 0 माइनस 0, 8 माइनस 8 0, 6 माइनस 0 0, सॉरी 6, 11 माइनस 4 7, 3 2 माइनस 1 1, तो कितना आ गया 17,617 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वेट ऑफ 1 centimeter cube metal is equal to 1.2 gram. Weight of 17,600 centimeter cube metal is equal to 17600 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो कितना आ गया बच्चों 21120 ग्राम। नाउ ग्राम को कन्वर्ट करेंगे उसमें किलोग्राम में, तो कितना आएगा 21120 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, 21120 ग्राम इज इक्वल टू 21120 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना आएगा 21.120, 21 किलोग्राम 120 ग्राम। क्लियर।